She is housewife, not receive any formal education. Blood group was not known to the patient. She is resident of Kalampur at the distance of about 1 hour from the hospital. She is gravida 7, para 1, abortion 5 with one baby boy alive and healthy 7 year back, delivered by spontaneous vaginal delivery. Her last abortion was 1.5 year back. Her last menstrual cycle was on 7th of She is Rajab, gravida, making she is gravida 7 para 1 plus abo- 5. abortion 5. हाँ ठीक है. her last menstrual cycle was on 7th of Rajab, making her expected date of delivery on 21 Rabiul Thani, corresponding to 19th October 2021. She is admitted in ward through outpatient department with a complaint of gestational amenorrhea of 37 weeks and 5 days by dates, with a low-lying placenta on scan and decreased amount of LICA around baby. Hmm. Her first pregnancy was spontaneous planned pregnancy. She get her first scan done at second month of her pregnancy from the local doctor, and she was reassured about fetus that she is having a single intrauterine pregnancy with fetal cardiac activity positive. However, pregnancy was ended at third month due to spontaneous miscarriage, which was followed by ERPC by the trained birth attendant. Her second pregnancy was also spontaneous planned. Her scan was done at second month, and she was told about single intrauterine pregnancy with fetal cardiac activity positive, with monthly visit to the doctor. And this pregnancy was ended at fifth month due to spontaneous missed miscarriage, which was followed by medical termination. My patient gave no history of any medical disorder or any gross anomaly on scan or after the delivery in the fetus. Her third pregnancy was spontaneous, planned, booked pregnancy to the gynecologist. Her first scan was done during the second month, and she was reassured about the fetus. And she took her routine antenatal visits to the doctor. Patient gave no history of diabetes, hypertension, any antepartum hemorrhage, or fetal anomaly during this pregnancy. At the 7 month of her pregnancy, she was told that blood group of the patient and her husband is not matched, so one injection cost about 7 to 8 thousand was given to the patient. The baby was delivered by spontaneous vaginal delivery at private hospital with average weight with no gross anomaly, and there was no history of any anti-D injection in the postpartum period. There was no history of any intrauterine transfusion, jaundice, exchange transfusion. However, blood transfusion was advised to the baby. But blood transfusion was not done, and baby is alive and healthy and student of class 1 with no any abnormality or disease. Her fourth pregnancy was spontaneous pregnancy. Fourth pregnancy was also ended at third month of her pregnancy due to a missed miscarriage, which was followed by DNC at private hospital. Her fifth pregnancy, in her fifth pregnancy, she gave the history of which was also spontaneous, planned, and booked pregnancy. However, pregnancy was ended at 6 months due to pre-prom, which is followed by cord prolapse, and baby was delivered within 1 hour. And there was no any gross anomaly was present, and no anti-D injection were given in these miscarriages. Her sixth pregnancy was also spontaneous planned pregnancy, which ended in second month due to missed miscarriage, and delivered by the medical termination, and no history of anti-D injection given. In all these pregnancies, no workup was done for the diagnosis. No, in between all these pregnancies, no workup was done for the diagnosis of diabetes, any uterine abnormality, fibroid, cervical incompetence, or thyroid, or no workup was done for antiphospholipid syndrome or any inherited thrombophilias. No workup was done for the viral infections, and patient give no history of oligohydramnios, polyhydramnios, placental abruption, or placenta previa in this pregnancy. My patient is non-smoker, non-alcoholic, and her husband is also non-smoker and non-alcoholic. And there was no evidence of chromosomal anomalies, as there is no history of anomalous baby in the family, or no gross anomaly present in the uh, no gross anomalies present in the fetus, and no abnormality found in the alive baby.
Now this is her, now my patient's seventh gravida. This is her spontaneous planned pregnancy. She assumed herself pregnant by missing periods, which was confirmed by during pregnancy test at home, which was done at 1.5 months of pregnancy. Her first scan was done during the second month, and she was reassured about the single intrauterine pregnancy with a fetal cardiac positive. Her baseline investigations were done, which were normal, and blood pressure was also checked, which was normal. She gave no history of any fever, flu, rash, diarrhea, or leaking per vaginum, bleeding per vaginum. However, she gave the history of history that tablet Loptin and injection Clexane were advised during the third month of her pregnancy, and progesterone support was also started. But she didn't took the injection Clexanes regularly. She gave history that she took only 3 injections during fourth month, or 2 injections during fifth month, or 1 to 2 injections during 6 months due to the non-affordability and non-availability of injections. She took regular antenatal एक मिनट visits. बेटा रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं जरा एक फोन। जी Hmm. जी Madam, सारा शुरू करें। जी madam, she took a regular antenatal checkup on a monthly basis. However, no oral glucose tolerance test or indirect womb test or NTD titers done during this pregnancy. During the 7th month, she gave the history of bleeding per vagina, which was painless, mild to moderate in amount, recurrent, fresh color, for which she took medication, and bleeding was stopped by this taking medication. After the first episode of bleeding, she was given the injection NTD. However, she gave the history of recurrent episodes of bleeding after every 15 to 20 days, which was stopped by taking the medications. Patient also give the history of when did this bleeding started in the current pregnancy? 7 month. ठीक है, 7 months में फर्स्ट एपिसोड हुई थी, और आफ्टर एवरी 15 to 20 days उसे वन एपिसोड होती थी, which was relieved ठीक by है, taking the medication and bed rest. ठीक And है। on the scan, she was told that she is having a low-lying placenta and bed rest was advised. On the labs, she was told that she is having a low hemoglobin level, for which 4 IV iron transfusions were done with no reaction, and last IV iron transfusion were given 1 month back. My patient gave no history of menorrhagia or PPH in previous pregnancies, hemorrhoids, hematuria, any bleeding disorder in herself, in her family. She gave no history of pica intake, barefoot walking, worming stool, or any chronic renal disease, liver disease, malaria, tuberculosis, any chronic malabsorption syndrome. My patient gave no, and her diet is deficient in fruits, vegetables, and meat. However, she gives no history of any intake of any antifolate drugs. My patient, hmm, my patient gave no history of any pre-labor rupture membrane of membranes in this pregnancy. And there is no family history of any anomalous babies. There is no history of diabetes, hypertension, any thyroid disease, photosensitivity, or any cardiac disease or asthma or any inherited trauma philias in herself. She gave no history of any intake of any NSAIDs. She gives no history of any vigorous exercise. She's non-smoker, non-alcoholic. With her inter-pregnancy intervals are about 1 to 2 years, and she belongs to low socioeconomic status. ठीक है। Mhm. Um, जी अब हो गए, ये कंप्लीट हो गई हिस्ट्री आपकी? जी मैडम। चले एग्जामिनेशन का बताएं। Madam, examination पे a young lady sitting comfortably on bed, well oriented in time, place, and person answering my question intelligently, having a BMI of 24 kg per meter square. Blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury. Her pulse is 90 beats per minute. Respiratory rate is 17 breaths per minute, and she is afebrile.
All her recessive lymph nodes are not enlarged. Thyroid is not enlarged. There is no pallor, chylonychia, jaundice, or cyanosis is present. Orodental hygiene is satisfactory. She's having normal vesical breathing with no added sounds. Her apex beat is in fifth intercostal space, medial to mid-clavicular line, and there is no added sound present. Our bilateral breasts are normal, looking symmetrical with no mass, with no any lump palpable. On abdominal examination, abdomen is protuberant, moving with the respiration with no visible striae, scar marks, or visible pulsations, and umbilicus is verted. Her honey orifices are intact. Abdomen is soft, non-tender, symphysiofundal height of about 34 centimeter, longitudinal lie and cephalic presentation. Head is 5 by 5. Laika volume seems to be decreased, and estimated fetal weight is about 2 to 2.5 kg. There was no palpable uterine contractions at the time of examination, and her fetal heart rates are 140 beats per minute. ठीक है, समराइज करें इसको. Mrs. Farzana, 25 years of age, gravida 7, para 1, abortion 5, at 37 weeks and 5 days with low-lying placenta and oligohydramnios on scan with RH incompatibility. Having a symphysiofundal height of about 34 centimeters. Longitudinal like cephalic presentation with lighter volume seems to be decreased, and estimated fetal weight is 2 to 2.5 kg. आपने समरी में बोला है RH इनकम्पैटिबिलिटी विद RH इनकम्पैटिबिलिटी. दूसरा ये कि समरी थोड़ी सी जो है वो समरी ही होनी चाहिए, उसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए. जस्ट गिविंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दैट पेशेंट बोथ इन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. लेकिन ये मुझे बताएं कि आपने RH इम्यूनाइजेशन का लफ्ज इसकी हिस्ट्री में समरी में क्यों बोला? Is she a definite case of RH incompatibility? मैडम मुझे पेशेंट ने नहीं बताया ब्लड ग्रुप, लेकिन बाद में उसके लैब्स में देखा था B नेगेटिव था उसका ब्लड ग्रुप. ओके, B नेगेटिव ठीक है, वो उसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन RH incompatibility means what? मैडम के बेबी का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप वाज नॉट सेम. लेकिन इसका मतलब ये है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी वो तो फर्क है, लेकिन RH इनकम्पैटिबिलिटी इज अ फीटल कॉम्प्लिकेशन. जी मैडम. ये उस मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप यानी जो इसमें RH फैक्टर की मिसमैच है, उसके नतीजे में अगर ये फीटल कॉम्प्लिकेशन हो जिसका एक अपना पूरा एक सिंड्रोम है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो जब हो तो फिर आप उसको RH इनकम्पैटिबिलिटी का डायग्नोसिस के तौर पे लफ्ज बोलते हैं. क्योंकि जस्ट knowing that the patient is B negative doesn't mean that she is a case of RH incompatibility. वो बिल्कुल फर्क है. आप सिंपली इसमें ये कह सकते थे कि विद ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव या ब्लड ग्रुप B नेगेटिव, उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी तो फिर एक सिंड्रोम आ जाता है. वो तो इसमें कहीं पे भी हमें पता नहीं चल रहा, ना हिस्ट्री पे, ना एग्जामिनेशन पे, ना ही पेशेंट ने आपको कुछ ऐसी चीज बताई, ना ही आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ऐसा कुछ पता चला. तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का जो है लफ्ज वो अनसूटेबल है इसके लिए. जी मैडम. डू यू अंडरस्टैंड? जी मैडम समझ आ गई. इसमें सिर्फ आपने ब्लड ग्रुप का मेंशन करना है. RH incompatibility is a diagnosis of fetal complication resulting due to mismatch RH status between the fetus and the mother. ठीक है जी मैडम. अच्छा, तो इसका ब्लड ग्रुप आपने बता दिया हमें B नेगेटिव है. अब आप इसकी स्क्रीनिंग फर्दर कैसे करेंगे? इसमें हम थोड़ा सा पहले जरा हिस्ट्री को देख लें. इसमें जो हिस्ट्री पे आपने पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं जिसमें ये कि इसमें एवेल्युएशन नहीं हुई डायबिटीज़ की, यूट्राइन abnormalities की भी, APL. What do you think seems the most probable reason for her repeated pregnancy losses? मुझे क्रोमोसोम probable diagnosis लगता है. क्रोमोसोम एनोमलीज. कैसे?
फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस 3 इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस थे। Occurring in sequence or sporadically? मैडम फर्स्ट 2 जो हैं वो उसके सीक्वेंस में हुए हैं। फर्स्ट ठीक 2 है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। हम्म, उसका थर्ड प्रेगनेंसी मैडम उसकी टर्म पे थी और पेशेंट ने मुझे उस प्रेगनेंसी में एनटीडी की हिस्ट्री दी थी कि 7 मंथ पे उसे रेडी लगा था एनटीडी। ठीक है, एंटीडी उसको लग गया, लेकिन ये है कि उसमें क्रोमोसोमल एनोमलीज की सस्पिशन कैसे पता चलती है अगर इसके पहले 2 रिकरेंट एबॉर्शंस हो गए और वो मिस मिस एबॉर्शंस थे। जी ठीक है, तो इसमें दैट मे बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज फॉर इनिशियल 2 रीजंस, लेकिन ये है कि इसमें बाकी जो इसके बाकी जो प्रेगनेंसी लॉसेस हुए उसमें तो कोई ऐसी डेफिनेट कॉज आपने मुझे नहीं बताई। एक इसका प्रॉम की वजह से प्री टर्म लेबर हो गई, ठीक है, जी और एक उसकी तीन इसकी मिसकैरेजेस हो गई, ठीक है। मैडम 4 इसके और मिसकैरेज थे। 4 इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओके, फर्स्ट 2 4 थे। मिसकैरेजेस और 2 इसके प्री प्रॉम थे। सॉरी, एक उसका प्री प्रॉम था और एक उसका फुल टर्म था। जी द बेबी हु वेंट टू टर्म, जो कि उसकी थर्ड प्रेगनेंसी थी, द पेशेंट रिसीव्ड एंटीडी इंजेक्शन एट 7 मंथ, है सही है ना? जी मैडम ऐसे ही है। What else she received in that pregnancy? कोई स्पेसिफिक थेरेपी एक्सेप्ट फॉर एंटीडी इंजेक्शन? और एंटीडी इंजेक्शन उसको उस प्रेगनेंसी में 7 मंथ पे क्यों लगा? प्रोफाइलेक्टिकली और ड्यू टू सम रीजन? मैंने प्रोफाइलेक्टिकली लगवाया था कि वहाँ उस टाइम पे जो है ना वो डायग्नोस हुआ था उसे कि उसका ब्लड ग्रुप और हस्बैंड ब्लड ग्रुप ओके, आर एग्री, नॉट ठीक है, मैच। वो इसको प्रोफाइलेक्टिकली लग गया, बट व्हाट एल्स शी रिसीव्ड एज अ ट्रीटमेंट इन दैट थर्ड प्रेगनेंसी व्हिच वेंट टिल टर्म? मैडम उस प्रेगनेंसी में उसे कोई लोप्रीन कोई क्लेक्सेन कोई प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट कुछ भी नहीं स्टार्ट हुई अकॉर्डिंग टू पेशेंट। तो और कोई डेफिनेटली ये कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं बनता जिसपे आप डेफिनेट कॉज इसकी ड्रॉ कर सके, जी क्योंकि अगर ये एपीएलएस का केस हो तो इट शुड बी रिकरेंट। अगर एनोमलीज का किसी हद तक आप इसमें शामिल कर सकते हो, पेशेंट कोई आपको क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं देती हाइपरटेंशन, डायबिटीज या एनी क्रॉनिक रीनल डिजीज, और आपने यकीनन प्लेसेंटल एब्रप्शन और ये सब चीजें पूछा होगा, इनकी एवेल्युएशन नहीं होती, इनका पेशेंट से हम हिस्ट्री पे पूछते हैं। पेशेंट जी हमें ऑटोमेटिकली बता देता है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो तो डेफिनेटली वो एसवीडी ना होती, उसका सेक्शन होता, अगर मेजर प्लेसेंटा प्रीविया होता। थायराइड फंक्शन टेस्ट और इसके अलावा जो इसका यूट्राइन एनोमलीज अगर होती तो भी टर्म तक बेबी इसका थर्ड प्रेगनेंसी ना जाती, और अब द करंट प्रेगनेंसी विच इज अबाउट टू बी एट 38 वीक्स, तो यूट्राइन एनोमलीज तो वहां से रूल आउट हो जाती हैं। डायबिटीज मिलाइटस कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, तो उसकी हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। आई एग्री कि इसमें इसकी स्क्रीनिंग पहले भी नहीं हुई और अब भी नहीं हुई। जी और एपीएलएस का इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बनता। थायराइड फंक्शन टेस्ट का भी डायरेक्ट उस तरह से नहीं बनता, अगर इसमें कोई भी इसका जो है वो, क्योंकि उसकी थर्ड प्रेगनेंसी जो सक्सेसफुल थी उसमें इसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिली, ना ही कोई जी स्पेसिफिक एवेल्युएशन इसकी हुई, तो वो बीच में एक थर्ड प्रेगनेंसी सक्सेसफुल थी और अब अभी की प्रेगनेंसी, तो इसमें अब ये ले रही है क्लेक्सिन भी, लोप्रिन भी और प्रोजेस्ट्रॉन भी, राइट जी फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऐसे ही है? जी जी मैडम ऐसी है। ठीक है। अब इसमें जो इसका प्रेजेंट स्टेटस है, इसमें नाउ यू से दैट शी इज विद द लो लाइंग प्लेसेंटा, हमें उसकी एक्सटेंट नहीं पता अभी तक, और शी हैज reduced amount of liquor. जी मैडम Symphysial fundal height is 34 centimeter. How you will correlate it with the gestational time period? Why it's less than the actual duration of pregnancy? ड्यू टू डिक्रीज लाइकर वॉल्यूम ठीक है। there may be a component of placental insufficiency IUGR. Was it clinically evident कि जो reduced amount of liquor है आपको clinically भी ऐसा ही लगा? जी मैडम क्लिनिकली भी रिड्यूस लाइकर था और फंडल हाइट भी हमारे पास 34 सेंटीमीटर की थी और लॉन्गिट्यूडनल लाई ही थी। Patient with history of recurrent vaginal spotting, she received anti-D injection on the first episode of vaginal bleeding. जी What about the other episodes which she is having after every 15 to 20 days? Are there any trigger of this vaginal bleeding
और दूसरी चीज ये कि क्या वो जो एंटी-डी दिया गया था क्या वो काफी है उसके रिकरेंट एपिसोड्स को कवर करने के लिए? नहीं मैडम, अबाउट दैट। मैडम कोई ट्रिगर नहीं था वो, कि स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी ट्रिगर वो मतलब एपिसोड्स होती थी, और उसके बाद उसे कोई नहीं दिया गया। और वैसे हमें हर एपिसोड के बाद 1 वीक के बाद अगर हो दोबारा रिकरेंट कॉज हो तो हमें देना पड़ता है एंटी-डी। यानी अगर अभी आपने एंटी-डी दिया, 1 हफ्ते बाद दोबारा ब्लीडिंग होगी तो आप दोबारा एंटी-डी दोगे? क्या आप ये कहना चाह रहे हो? जी मैडम, जी अच्छा, चलो इसको हम बाद में कवर करते हैं। जी। अब हम आते हैं इस पेशेंट की एवेल्युएशन पे। एवेल्युएशन इसकी, अब जो इन्वेस्टिगेशन आपने करानी है, ब्लड ग्रुप वी नो, व्हाट आर द अदर इन्वेस्टिगेशंस? मैम हर हस्बैंड ब्लड ग्रुप क्या था? मैडम ओ पॉजिटिव। ओके, और मैडम मैडम एंटी-डी टाइटर। ठीक है। और मैडम एंटी-डी इसके टाइटर से आपका क्या मतलब है? व्हाट यू वांट टू टेस्ट? मैडम फीटोमीटर है, मतलब हेमरेज कितना है, अगर तो एंटी-डी टाइटर हमारे पास 10 से ज्यादा हमारे पास आता है तो मिडल से वो कराएंगे, मिडल सेरेब्रल टाइटर आर्टरी। में आप बेसिकली टेस्ट क्या कर रहे होते हो? एंटीबॉडीज देख रहे एंटीबॉडीज टू व्हाट? हैं अगेंस्ट द फीटल एंटीजन, पीटर कौन सी फीटल एंटीजेंस? कौन से डी फीचर है? एंटी डी एंटीजन। एंटीबॉडीज टू आरएच पॉजिटिव सेल्स या आरएच पॉजिटिव एंटीजेंस, ठीक है। तो ये आपने टेस्ट किस में करना है? ब्लड में, सीरम में, किस में आप करते हो? आरबीसीज पे, किस पे करते हो? ब्लड में करते मैडम, मुझे पता नहीं, ब्लड में करते हैं। ओके, ठीक है, चलो ये सीरम में करते हैं ठीक क्योंकि है। ये कोटेड नहीं होते ऑन टू द आरबीसीज, इसी वजह से इसको इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट भी कहा जाता है। और क्या हम करेंगे? और टेस्ट? मैडम कंप्लीट ब्लड काउंट, in which I want hemoglobin in gram per deciliter, TLC count, platelet count, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसकी कितनी थी? 9 gram per deciliter. बिफोर इन्फ्यूजन और आफ्टर इन्फ्यूजन? After ये IV iron transfusions on admission. आफ्टर 4 IV आयरन इन्फ्यूजन, जी ठीक है। ओके, नाउ प्लेटलेट एंड व्हाट एल्स? TLC काउंट हो गया था मैडम। टीएलसी और मैडम इसके RBC इंडिसेस, ठीक है। ठीक व्हाई है। व्हाई पेरिफेरल आरबीसी? मॉडरेट एनीमिया है तो उसके लिए, मतलब टाइपिंग ऑफ एनीमिया के लिए। अच्छा, ठीक है। RBC इंडिसेस और पेरिफेरल ब्लड फिल्म, सीरम फेरेटिन और स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड ओवर एंड cyst। इसमें जो जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं आप बताती जाइए। सीरम फेरिटिन कितना था? ये अवेलेबल नहीं थी, कोई भी पेशेंट उसी दिन एडमिट हुई थी। ठीक है। और ये बाकी भी हीमोग्लोबिन के अलावा बाकी भी मार्कर्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे आरबीसीज इंडिसेस पर नॉट मैडम सारे अवेलेबल? डिक्रीज थे मैडम, हाँ, RBC इंडिसेस सारे डिक्रीज थे। सारे डिक्रीज थे, ओके, हाँ ठीक है। और क्या टेस्ट कराएंगे इसमें? मैडम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग आप कराओगे, और हेपेटाइटिस बी सर्विस एंटीजन, एंटी HCV एंटीबॉडीज एंड कोविड PCR। वायरल मार्कर्स, ठीक है। नेगेटिव थे, क्या थे? जी मैडम नेगेटिव थे। बोथ, ठीक है। मैडम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन इन विच आई वांट बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी। और ठीक है, माइक्रोस्कोपी आई वांट ब्लड सेल्स, और बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज, एल्बुमिन और कीटोन्स। मैडम सारे नेगेटिव थे। ठीक है। और मैडम अब पेशेंट का डेटिंग स्कैन, ठीक, ठीक है। और ग्रोथ स्कैन्स मैडम, पेशेंट के ग्रोथ स्कैन्स, एनॉमली स्कैन। ग्रोथ स्कैन आप उसका किस किस वक्त का मांगोगे? मैडम ग्रोथ स्कैन के लिए 3 to आप 4 weeks।
हम्म 3 to 4 weeks अपार्ट हो मैडम, अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे 28 weeks, 32 weeks, 36 weeks। 28, 32 एंड 36 वीक्स। जी अगर symphysial fundal height is 34 centimeter and you say that it is reduced due to reduced amount of liquor, still you will like to know about the serial growth pattern in this baby. उसका कोई justification होनी चाहिए ना. Many times these serial growth charts are not available. क्या फिर भी आप मांगोगे? मैडम, रिस्क है मेरे पेशेंट में प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी का और IUGR होने का, इसलिए मैं मांगूंगी। ठीक है, ठीक है, एग्री मैं इसलिए इससे करती हूँ कि इसमें चूंकि सीरियली इसका रिकरेंट ब्लीडिंग के एपिसोड्स हैं and moreover there is reduced amount of liquor in absence of any rupture of membrane। हालांकि ये लो लाइंग प्लेसेंटा, लेकिन हमें ये नहीं पता मेजर है या माइनर है, सो फार हमें नहीं पता इसका। तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ लाइकर जो है वो एक क्रॉनिक हाइपोक्सिक स्टेटस को इंडिकेट करता है। सो विद दैट वी नीड टू नो इट, या कम से कम अगर अभी का भी स्कैन मिल जाए, अगर तो उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम होगी, फिर भी आप किसी हद तक कुछ ना कुछ उसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्कैन अमूमन आपको एग्जामिनर यही बताएंगे और ज्यादातर यही होता है। जैसे ये पेशेंट अभी दाखिल हुआ तो इसमें ज्यादातर तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, स्पेशली द ग्रोथ स्कैन। हो सकता है नॉर्मली स्कैन या बहुत इनिशियल स्कैन अवेलेबल हो कि पेशेंट आप खुद इतने अवेयर होते हैं कि वो खुद से ही ये करवा भी लेते हैं, बट सपोज ग्रोथ स्कैन इज नॉट अवेलेबल, जो ज्यादातर केसेस में सिनेरियो हो सकता है। और इसमें क्या कराओगे ग्रोथ स्कैन के अलावा? और मैडम डॉप्लर अम्बिलिकल आर्टरी डॉप्लर, यानी अब आपने जो है वो अब अपने इस वक्त का जो करंट स्कैन करवाना है अभी, ठीक है, उस पे व्हाट यू विल लाइक टू नो नाउ? मैडम इसका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हम देखेंगे, एस्टिमेटेड फीटल वेट देखेंगे। फीटल बायोमेट्री बेसिकली आप देखोगे, जी ठीक है। जी, और लाइकर वॉल्यूम, और मैडम ठीक है, मैडम और प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, एस्टिमेटेड फीटल वेट, और बायोमेट्री और फीटल वायबिलिटी और एनी ग्रॉस एनॉमली। ठीक है, और मैडम डॉप्लर पे एंड डायस्टोलिक फ्लो इसका, और एसटी रेशियो, पल्सिटिलिटी इंडेक्स, रेजिस्टिव इंडेक्स। ठीक है। इसकी रिपोर्ट क्या थी अल्ट्रासाउंड पे? अगर तो ये अमूमन मैनेजमेंट के साथ डिस्कस होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन को फैसिलिटेट करने के लिए बाद दफा एग्जामिनर आपको पहले हाफ में भी बता देते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ज्यादातर सेकंड हाफ में बताई जाती है। तो इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या थी? मैडम इसके अल्ट्रासाउंड पे मैडम 34 वीक्स की बायोमेट्री थी इसकी। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, पीपीडी, फीमेल लेंथ तीनों 34 वीक्स के थे। ओके, लाइका वॉल्यूम 4 to 5 सेंटीमीटर था, और प्लेसेंटा इंटीरियर मेजर डिग्री प्लीविया था। एंटीरियर मेजर डिग्री, ठीक है। चलें, आप ये बताइए कि इसमें अब हम ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ये अवेलेबल होगी, इसमें और कुछ है टेस्ट जो आप करवाना चाहोगे इस पेशेंट में, इस पर्टिकुलर पेशेंट में? मैडम अब मैडम इसका मतलब फॉर एडहेरेंस के मोरबिड एडहेरेंस ऑफ प्लेसेंटा के लिए मुझे इसका डॉपलर चाहिए होगा। ठीक है, वो डॉपलर तो आपने ऑलरेडी डिमांड कर जी लिया था, ठीक है। जी सपोज इट्स नॉट एब्नॉर्मली एडहेरेंट, ठीक है, ठीक है। और तो मैडम और इसका क्या हम अम्बिलिकल करेंगे? आर्टरी, वैसे अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इसका नहीं हुआ हुआ था। मैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पे अगर कुछ हो तो फिर मैं उसका मिडल सेरेब्रल आर्टरी करवा लूंगी, बस और कुछ नहीं। सपोज इसका डॉपलर फ्लो भी ठीक है, यानी एसटी रेशियो में कोई प्रॉब्लम, एसटी रेशियो इज 3, ठीक है तो मैडम। और और इसमें ये नाउ वी कंप्लीट विद द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। My question is that what else you need to know in investigations? मैडम उस सीटी से हम पेशेंट की करवाएंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल फिट। ठीक है, और और बस मैडम और कुछ।
बस पेशेंट इज करंटली ऑन लोप्रिन एंड क्लेक्सिन, अभी तक जी ले रही है? मैम क्लेक्सेन नहीं ले रही, लोप्रिन ले रही थी वो भी। ठीक है, क्लेक्सिन क्लेक्सेन ऑफ बस एंड उसे ऑन था इसका। क्लेक्सेन मैडम से 6 मंथ में बस लास्ट इंजेक्शन लिया था, उसके बाद फिर नहीं लिया। ओके, लोप्रिन पे अभी तक ये है। ठीक जी है, तो ये इसकी जब हम खैर मैनेजमेंट के साथ ये कुछ चीजें इसकी डिस्कस होंगी, लेकिन आपके ख्याल में एक पेशेंट जो लो प्लेन पे है, क्या इसके साथ हमें कुछ और टेस्ट करवाने की जरूरत है? जी शी मैडम हैज कोरिलेशन हिस्ट्री ऑफ प्रोफाइल। रिकरेंट ब्लीडिंग एपिसोड्स। जी मैडम क्लोजिंग प्रोफाइल मुझे करवानी चाहिए, PT AT and INR। हम्म, ठीक है, पीटी एपीटीटी आईएनआर ये भी इसका नहीं हुआ होगा। नहीं मैडम ठीक है, ये नहीं अवेलेबल नहीं था अभी। ओके। नाउ हाउ यू विल ट्रीट दिस पेशेंट? पेशेंट एज 38 वीक्स, जी और इसके अलावा शी उसका सारा जो करंट सिचुएशन है आपके सामने है। जी इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और अब आपने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? madam, first of all, I will counsel the couple regarding the diagnosis that she is having a high risk pregnancy and हम्म she is diagnosed as gravida 7 thera 1 abortion 5 at 37 weeks with placenta previa major degree and oligohydramnios with हम्म moderate anemia and having a blood group of B negative, due to हम्म due to which I will keep the patient admitted, and I will explain the fetal-maternal risk associated with this pregnancy. हम्म Regarding the mother, we have to do her C-sections. I will explain the risk associated with C-section, risk of hysterectomy, multiple blood transfusions, need of ICU care, risk of हम्म maternal mortality is also increased in that cases, and risk of thromboembolism or having heavy episodes of bleeding which can lead to the shock or maternal mortality. हम्म Regarding the fetus, there is a risk of intrauterine demise, early neonatal death, IUGR, or jaundice, exchange transfusion, blood transfusion needed after the birth of the baby. And हम्म there is, I will do the fetal maternal monitoring हम्म vigilantly. I will give हम्म her the mother the steroid cover. I will हम्म। arrange 4 to 6 units of blood. My plan is to पेशेंट इज एट transfuse. 38 वीक्स। जी मैम। हम्म I will arrange 4 to 6 units of blood. My plan is to transfuse two हम्म units of Paxil. हम्म As my patient is placenta previa and there is risk of bleeding, and and at the moment patient is not bleeding, so I will first transfuse 2 units of blood and then plan a cesarean. I will take the consent for the hysterectomy, ICU care, and blood transfusions. I will involve the multidisciplinary team in which I will involve the हम्म anesthetist, pediatrician, surgeon, हम्म and urologist. I will हम्म do. I will then after all this, I will prepare the patient for the cesarean. I will. बेसिकली इस पेशेंट में कुछ हैं जो प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशंस हैं इसमें, लाइक ऑप्टिमाइजिंग द हीमोग्लोबिन। ठीक है, और उसके अलावा जो रिस्क, ज़ाहिर मोड ऑफ डिलीवरी विल बी सिजेरियन सेक्शन इन व्यू ऑफ द मेजर प्लेसेंटा, but what do you expect are the complications occurring in during the surgery, और उसकी आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है? You must be prepared for the PPH, you must be prepared for emergency hysterectomy, और इसके अलावा पेशेंट की काउंसलिंग, कंसेंट टेकिंग और आपके जो सर्जिकल सारी टेक्निक्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए। और उससे पहले वाली जो प्रेपरेशन की चीजें हैं, हीमोग्लोबिन वाली चीज है, एंड हाउ यू विल टैकल द लो, शी इज स्टिल ऑन लोप्रिन। जी मैम वो स्टॉप कर लोप्रिन के दीजिए। साथ व्हाट आर द रिस्क? अब अभी आप स्टॉप करोगे तो इसका इफेक्ट कितनी देर के लिए लिंगर ऑन करता है? तो प्लेसेंटा प्रीविया तो एक चीज है विच प्री डिस्पोजेस द केस टू बी टू द पोस्टपार्टम हेमरेज, बट इन एडिशन टू दैट शी इज ऑन लोप्रिन। अब पीटी एपीटीटी को सेफ साइड पे हमने जो है वो डिस्कशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको नॉर्मल कर दिया, और जरूरी नहीं होता कि पीटी एपीटीटी अगर प्रोलॉन्ग्ड आए तो ही ब्लीडिंग उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें प्लेटलेट डिस्फंक्शन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। जी So still the patient is at risk of bleeding, especially in view of her placental localization. जी और मैम। लोग इस पेशेंट को देना
प्लेसेंटा प्रीविया के साथ, और वो भी जबकि रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग है, वो दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क। और इसमें तीसरी चीज ये कि इसमें इंडिकेशन क्या थी लोप्रिन देने की। सो यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चंस, और यू कैन बी आस्क्ड अबाउट योर ओपिनियन एज रिगार्ड टू दिस थेरेपी। इस पेशेंट में लोप्रिन देने की इंडिकेशन क्या थी, उसकी जो प्रीवियस एक टर्म की सक्सेसफुल प्रेगनेंसी थी दैट वेंट विदाउट एनी कोएगुलेशन एंटीकोएगुलेंट्स। ना उसने लोप्रिन ली, ना उसने क्लेक्सन ली। क्लेक्सन तो चलो इसका रेगुलर वो नहीं है, लेकिन अब ये लोप्रिन अभी 38 वीक्स तक के ले रही है, बावजूद इसके कि इसको बीच में रिकरेंट वेजाइनल स्पॉटिंग होती रही, ब्लीडिंग होती रही। तो इसलिए इस केस में इसकी इंडिकेशन इसको स्टॉप करने के बाद भी कितनी देर के लिए इफेक्ट रहता है, एंड व्हाट एल्स यू नीड टू काउंटर एट द इफेक्ट्स ऑफ लोप्रिन FFPs मुझे साथ चाहिए ब्लड। ड्यूरिंग जी सर्जरी। अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो फिर आप उसको कैसे काउंटरएक्ट करोगे। तो ये मैडम सारी। हमारे पास और दूसरी चीज, एक चीज मेरे ज़हन से ना निकल जाए, वो ये कि जो रिकरेंट वेजाइनल स्पॉटिंग पे जो एंटी-डी का मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसमें एंटी-डी जब हम एक दफा देते हैं, प्रोवाइडेड द फीटो मैटरनल हेमरेज इज नॉट दैट बिग, अगर तो सिर्फ स्पॉटिंग है तो वो स्मॉल फीटो मैटरनल हेमरेज है, अगर चाहिए हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो इसको खास तौर पे क्वांटिफाई करने के लिए आप क्ले हॉर टेस्ट करते हो, जिसमें हमें उसकी क्वांटिफिकेशन एग्जैक्ट पता चल जाती है। बट इफ यू हैव गिवन एंटी-डी वंस, इट विल कवर 6 वीक्स टाइम पीरियड। अगर एक ही हफ्ते बाद स्पॉटिंग हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो उसमें जरूरी नहीं है देना एक हफ्ते के बाद ही, वो उसको कितनी को दफा आप दोगे, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। 7-8 हजार का इंजेक्शन उसको हर हफ्ते तो नहीं आप लगा सकते। तो एक दफा का दिया इंजेक्शन 6 हफ्ते के लिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और यही इसका जो होता है, इसकी स्ट्रेटेजी जो हम देते हैं एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस में, कि एक हम लगाते हैं 28 वीक्स पे, दूसरा लगाते हैं 34 वीक्स पे, और तीसरा हम लगाते हैं अगर 40 वीक्स के बाद डिलीवरी हुई है तो उसमें उसको कवर करने के लिए। तो 6-6 हफ्ते का टाइम पीरियड बीच में तकरीबन आ जाता है। और अगर फर्ज किया सेकेंड डोज ऑफ एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंटी-डी के 2 हफ्ते बाद डिलीवरी हो जाती है, तो फिर एक्सेप्ट फॉर इन केसेस ऑफ स्वीयर हेमरेज या कोई पीपीएच या मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा या ऐसी चीज जिसमें ज्यादा मैसिव हेमरेज हो, मोर देन 4 ml, जिसको ये यूजुअली ये कवर कर लेता है, अदरवाइज वो कवर कर लेगा इसको। और अगर फीटो मैटरनल हेमरेज ज्यादा है तो फिर हमें एडिशनल उसकी डोज देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे मैं क्लियर आपका करना चाह रही थी। नाउ कमिंग बैक टू द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसमें रिस्क फैक्टर यू शुड कीप इन माइंड, इसमें लोप्रिन पे भी है, और हम इसकी सर्जरी बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग भी नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ द रिस्क ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग विल बी इंक्रीज्ड मोर, बिकॉज नाउ शी इज एट 38 वीक्स, और 38 वीक्स पे किसी वक्त लेबर शुरू होने का, बाकी जो लोअर सेगमेंट बनता है और उससे जो प्लेसेंटल सेपरेशन होती है वो उसके भी चांसेस, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। सो एनी टाइम शी कैन ब्लीड हैवीली बिकॉज दिस इज मेजर प्लेसेंटा प्रीविया, और लाइकर कम है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस है सो फार एज इंडिकेटेड ऑन अल्ट्रासाउंड्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी। सो वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव टू डिसाइड, एक आध दिन में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा इसका, बिकॉज अमाउंट ऑफ लाइकर इज बिलो द नॉर्मल वैल्यू, लोअर नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें आपने इसको सेक्शन के लिए 2 ब्लड आपने कहा कि मैं इसको ट्रांसफ्यूज करूंगी, 2 ब्लड आप कब ट्रांसफ्यूज करोगे, कितने दिनों में ट्रांसफ्यूज करोगे? मैडम डेली मैडम एक दिन करूंगी ट्रांसफर, और नेक्स्ट डे करके डिलीवर, और नेक्स्ट डे मैं उसके सर्जरी प्लान कर लूंगी। इफ कोई देयर इज नो फीटो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन अकर्ड इन 2 days। जब आप इतना फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे होते हो तो उसमें कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस भी होती हैं। मैडम और ब्लड आप कौन सा ब्लड कंपोनेंट दोगे, होल ब्लड दोगे, क्या दोगे? मैं इसे पैक सेल वॉल्यूम लगाऊंगी एट दिस मोमेंट। पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। और पेशेंट है बी नेगेटिव, ठीक है जी।
इसमें RH एंटीबॉडीज हमने देखा कि नेगेटिव हैं, ठीक है। जी अभी तक हमने इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा हुआ। मे बी समटाइम्स यू गेट सम कॉम्प्लिकेशन कि इसमें कोई पीटीए रेंज हो जाए या इसमें डॉपलर फ्लो स्टडीज कॉम्प्रोमाइज आ जाए, उसमें तो इमीडिएटली भी बात दफा करना पड़ता है, तो उसके जी अकॉर्डिंगली सिचुएशन चेंज होती है। दिस आइडियल मीन्स कि इसमें इलेक्टिव सर्जरी की तरफ आप जा सकते हो। जी। तो अब आपने इसको 2 ब्लड लगा दिए, एंड व्हेन यू आर प्लानिंग टू डू हर सिजेरियन सेक्शन, मैडम ऑन थर्ड डे इन मॉर्निंग लिस्ट। आज कल या परसों, कब? एक ब्लड में ऐसे आज लगाऊंगी, कल फिर परसों में ऐसे लिस्ट पे हम्म इलेक्टिव हम्म लिस्ट पे मैं से प्लान करूंगी। और मैडम हम्म इसके अरेंज में वही 4 to 6 यूनिट्स ऑफ पैक सेल विद 4 FFPs एंड 4 प्लेटलेट्स अरेंज करूंगी साथ उसके। ठीक है। और एफएफपी क्यों रेंज करोगे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो लो प्रिंट पे है? मैडम रिस्क ऑफ PPH है, और मैडम हम्म पैक सेल हम पैक सेल ले रहे हैं तो हमें साथ चाहिए होंगे कि पैक सेल के साथ हम एक FFP भी लगाते हैं क्यों एट लगाते द हैं? टाइम ऑफ हेमरेज। अगर हेमरेज हो रहा हो, एक्टिव हो हेमरेज, तो DIC हम्म, का रिस्क थोड़ा भी होता है, तो इसलिए हम लगाते क्योंकि उसमें प्लाज्मा नहीं होता और प्लाज्मा में हैं। कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, इस वजह से। क्या रेशो होती है एफएफपी की और आरबीसीज की या पैक्ड सेल्स की? मैडम 4:1। मतलब कितने पैक्ड सेल हों और कितने एफएफपी लगने चाहिए? 4 पैक सेल्स एंड 1 FFP लगना चाहिए। 4 पैक्ड सेल्स और एफएफपी। सपोज शी स्टार्ट्स हैवी ब्लीडिंग, फिर मैडम उसमें तो डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी भी अदरवाइज हो जाती है। नाउ द प्लाज्मा इज लॉस्ट, द कोएगुलेशन फैक्टर आर बीइंग लॉस्ट इन एडिशन टू द प्राइमरी डेफिसिट। तो उस सूरत में आपकी ये रेशो और ज्यादा नैरो हो जाती है। यानी इवन जहाँ पे मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज होता है वहां पे ये रेशो बाज दफा 1:1 भी हो जाती है, 2:1 भी होती है। 1:4 जो है वो ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज इसमें कम ही की जाती है। इसमें ज्यादातर 2 और 3:1 एफएफपी, यानी 2 से 3 ब्लड के बाद एक एफएफपी। और जहां पे स्वेयर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज हो वहां पे 1:1 की रेशो, ठीक है। अब इसकी आपने सर्जरी करनी है परसों। इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस एक्सेप्ट फॉर ब्लड अरेंजमेंट और ये सारा कुछ आपने कर लिया, आपने कंसेंट हाई रिस्क ले ली, उसके अलावा आप सर्जरी करते हुए अदर प्रिकॉशंस आपकी क्या होंगी? पेशेंट हैड प्रीवियस एसवीडी। मैडम उसकी प्रीवियस DNCs की हिस्ट्री है। देयर इज अ रिस्क ऑफ मॉर्बिड एडहेरेंस। आई विल वो तो हमने रूल आउट कर लिया, जी। वो अल्ट्रासाउंड वाले कहते हैं कोई मॉर्बिडली एडहेरेंट नहीं है। मैडम मैं फिर भी सर्जन और यूरोलॉजिस्ट को अरेंज रखूंगी, हम्म मतलब सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट को फिर भी इन्वॉल्व करूंगी। वो क्यों? वो क्या काम है जो हम नहीं कर सकते और सर्जन आके करेगा या यूरोलॉजिस्ट आके करेगा? अगर मॉर्बिडली एडहेरेंट नहीं है तो उनको इन्वॉल्व करना क्यों जरूरी है? मैडम 100% सेंसिटिविटी नहीं होती डॉपलर की, इसलिए। अच्छा, ठीक है। फिर ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सर्जरी मैडम ये कि आई विल डू द ट्रिपल ट्रिपल पी प्रोसीजर जो प्लेसेंटा प्रीविया मेजर डिग्री की है मैडम। कैसे? आई विल एक्सप्लेन इट गिव प्लीज। मैडम I will localize the placenta intraoperatively. I will give the incision वो 2 तो अपने centimeter above. लोकलाइजेशन आपको अल्ट्रासाउंड से भी पता चली गई थी। जी मैडम, I will give the incision about 2 centimeter above the placenta. हम्म I will after the delivery of the fetus, I will wait for 1 minute. Either placenta is separated or not. If हम्म it is separated easily, then तो हम्म मैडम वो सब कुछ ठीक होगा। और अगर हम्म सेपरेट नहीं हो रहा तो हम्म ठीक है मैडम, मैं उसका ब्लैडर में उसका डिटेक्ट किया हुआ था। हम्म। बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, आई विल डू बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, देन आई नीचे विल डू द सारा मायोमेट्रियल प्लेसेंटा है, एक्सपीएन। नीचे सारा प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में है ना, वहीं पे जी दाएं बाएं यूट्राइन आर्टरीज होंगी। आई विल ट्राई टू रिमूव as much placenta as possible and do myometrial excision, which is lower segment मैडम जो अटैच है उसके साथ जितना, अगर वो नीचे जो ट्राइन सेगमेंट की एक्सचेंज कर दूंगी। हम्म ठीक।
और प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो रहा है तो फिर आप जी यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन क्यों करोगे? मैडम, अगर प्लेसेंटा पूरा इजीली सेपरेट हो गया और देयर वाज नो एटोनी, देयर वाज नो हेमरेज फ्रॉम द प्लेसेंटल बेड, देन आई विल नॉट डू the हम्म uterine artery ligation. हम्म If the placental bed is bleeding and was not हम्म controlled, then I will proceed towards हम्म, the bilateral uterine artery ligation. ठीक है। बेसिकली यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन का मल्टीपल रोल है, इवन इन एडहेरेंट प्लेसेंटास भी, कि यूट्राइन आर्टरी को हम लाइगेट कर सकते हैं, क्योंकि बाज दफ़ा हमें जो लोअर लिमिट है प्लेसेंटा की उससे नीचे सर्विक्स होती है। एक ऐसा पेशेंट जो लेबर में ना गया हो, उसकी सर्विक्स और उसके इर्द गिर्द हमें इतनी जगह मिल जाती है कि वहाँ पे यूट्राइन आर्टरी को हम लाइगेट कर सकें। And even in the presence of morbidly adherent placenta or the low lying placenta, अगर तो लो लाइन वैसे ही है, सिंपली है, विदाउट एनी एब्नॉर्मल एडहेरेंस, तो उसमें हमें पहले से करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो हम उसको निकालेंगे और उसके बाद अगर पेशेंट पीपीएच में गई, नॉट कंट्रोल्ड बाय रूटीन, जो उसके कंप्रेशन सुचर्स हैं उससे भी मैनेज नहीं होता, एंड देयर आर मेनी ऑफ दीज जो कि आप इसमें ट्राई कर सकते हो बिफोर गोइंग फॉर यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन शुड नॉट बी द प्राइमरी स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। उसमें आप इनिशियली कंप्रेशन सुचर्स के साथ ही उसको मैनेज करते हो, एंड in the presence of low lying placenta when the placental bed bleeds excessively but is not morbidly adherent, you can even go for the circumferential incision that acts as a tamponade effect. उसका tamponade effect होता है, वॉल टू वॉल एडहेरेंस हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लीड नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर फर्ज किया बावजूद इन सब चीजों के ब्लीड करे, देन यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन आप कर सकते हो और उसमें आपको इतनी जगह मिल जाती है। While on the contrary, if the case is of abnormally adherent placenta, morbidly adherent placenta का है तो उस सूरत में आपने, if you find an enough space for the uterine artery ligation, that should be done beforehand. If it is a confirmed case of morbidly adherent placenta, तो उस सूरत में आप उसकी दोनों तरफ की यूट्राइन आर्टरीज को लाइगेट कर दोगे प्लेसेंटा, क्योंकि बाद दफा तो आप बेसिकली हिस्टेक्टमी को प्रोसीड कर ही इलेक्टिवली ही कर रहे होते हैं, और कुछ सूरतों में जो एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा जो पहले डॉक्यूमेंटेड था, अब वो अगर फर्ज किया नहीं है और इट इज जस्ट अ पार्शियल एडहेरेंट प्लेसेंटा और हमने यूट्राइन कंजर्वेशन सर्जरी करनी है, इंसिजन आपने ऊपर दिया, बच्चा निकाला, एंड देन सी के प्लेसेंटा को जबरदस्ती रिमूव करने की कोशिश नहीं करोगे, just to see whether it is separated on its own or not. Sometimes it separates and just a small portion of it is abnormally adherent. You can resect that part of the uterus and then end-to-end anastomosis. That is one form of the uterine conservation surgery. और उस सूरत में पेशेंट को हमें बाद दफा हेल्प लेनी पड़ती है with the uterine artery ligation. But suppose if the whole of the placenta is abnormally adherent, then usually there are 2-3 things which we can go for. अगर ये इनक्रीटा नहीं है या परक्रीटा नहीं है, इनक्रीटा में एक्चुअली इशू ये होता है कि इनक्रीटा में इट इज नाउ बीइंग पेनिट्रेटेड इनटू द मायोमेट्रियम। अब जहां जहां ये पेनिट्रेट करता है वहां का टिश्यू ये खत्म कर देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, सो जस्ट अ थिन मेम्ब्रेन इज लेफ्ट. So except that it is this abnormal adherent is only in the lower segment, अगर ये upper segment में हो तो वो myometrium अमूमन restore बाद में नहीं होती. So in a completed parity patient, it is better and safe to go for hysterectomy, obstetric hysterectomy. वो as an elective procedure आप उसको separate किए बगैर आपने जो है वो उसको proceed कर लिया. लेकिन अगर फर्ज किया still you have to go for the conservation surgery, फिर आपके पास 2-3 चॉइसेस हैं. उसमें फिर ये है कि पूरे का पूरा प्लेसेंटा अबनॉर्मली एडहेरेंट है, पेशेंट इधर प्राइमी है या बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लाइक इन दिस पेशेंट, और पेशेंट यंग भी है, क्योंकि हिस्टेक्टमी करना यंग एज पे उसके अपने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इवन इफ द फैमिली इज कंप्लीटेड. तो ऐसी सूरत में complete abnormally adherent placenta and we aim to conserve the uterus, या तो आप इसको प्री ऑपरेटिवली यूट्राइन आर्टरी कैथेटर डालें और इसको एम्बुलाइज कर दें,
तो उसमें आप यूट्रस सेव कर सकते हो। सेकेंडली, यू कैन लीव द प्लेसेंटा देयर एंड देन आपने प्लेसेंटा जो सेपरेट नहीं होता वो ब्लीड भी नहीं करता। जो एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा है वो ब्लीड भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सेपरेट नहीं होगा, वो ब्लीड भी नहीं करेगा। तो आप उस प्लेसेंटा को वहीं छोड़ दो, कॉर्ड को टाई करके उसको यूट्रस के अंदर रहने दो कि पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा। ब्लीडिंग हो तो हमें हिस्टेक्टमी की जरूरत पड़ती है। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। मैम पार्शियल एडहेरेंस का क्या करेंगे अगर इनक्रीटा नहीं है, एक्रीटा है खाली? अगर एक रीटा है और सिर्फ उसका थोड़ा सा पोर्शन एडहेरेंट है, तो उतने से पोर्शन को, जैसे 2-3 सेंटीमीटर हो गया, उतने से पोर्शन को आप निकाल दें एबनॉर्मली एडहेरेंट वाला, और उसको बाकी यूट्राइन वॉल को स्टिच कर दें आपस में। तो ये इसमें ये सेगमेंटल रिसेक्शन कहलाती है। और सेगमेंट की हो सकती है, पर सेगमेंट की नहीं हो सकती। हाँ, सेगमेंटल रिसेक्शन होती है। और अगर ये कंप्लीट करके उन्होंने कहा है कि सारे लेट मी कंप्लीट वॉल जो है ना वो लेट मी कंप्लीट। की तरह रहता है, वहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर ये डॉक्टर मारिया प्लीज माइक ऑफ कर दें। अगर ये कंप्लीट हो तो हमने जो ऑप्शन डिस्कस की थी वो ये कि या तो अगर फैसिलिटी है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन पहले से आप कर लें, तो उसमें हम यूट्रस सेव कर सकते हैं। लेकिन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। इसका खर्चा मेरा ख्याल है कोई लाख से ऊपर तक का ही आता है। लेकिन जाहिर है अगर किसी पेशेंट में आप उस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो तो कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द चॉइसेस। और इसके अलावा अगर पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा और एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा या एक रीटा जो होता है वो नहीं ब्लीड करते, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हुआ होता, तो सेपरेट होगा तो ब्लीड करेगा, तो वो प्लेसेंटा आप वहां पे छोड़ सकते हो। वो ग्रेजुअली खुद ही रिग्रेस करेगा। और अगर फर्ज किया ये सेकेंडरी पीपीएच में जाता है कि थोड़ा बहुत प्लेसेंटा शेड ऑफ हुआ, बाकी ने ब्लीड करना शुरू किया, तो जो सेकेंडरी स्टेप के तौर पे आप इसको वो करते हो, बेसिकली उसमें अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग भी कम होती है एंड यूजुअली यू आर एबल टू सेव द यूट्रस। तो ऐसी सूरत में फिर आप ये दो चॉइसेस हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन इन द केसेस ऑफ एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा, अगर इसमें फर्ज किया गया पार्शियल भी है, तो उस सूरत में दैट वर्क्स वेल, क्योंकि उसमें जब आपने दोनों तरफ की आर्टरी लाइगेट कर दी तो ये तकरीबन 60-70% ब्लड लॉस तो वहीं पे कम कर देगा। तो इसलिए जो है वो इसमें ये सारी स्ट्रेटजीज का हमारे जहन में होना चाहिए कि किस कंडीशन में हमने क्या करना है। मैडम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन सर्जरी से कितना टाइम बिफोर करनी है? सर्जरी तो हमने पेट खोला हुआ है, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन तो हम उसी वक्त करेंगे, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन हमें पता है कि ये नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा है और फर्ज किया पेशेंट ने ब्लीड करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, बाकी नहीं हो रहा, तो आप उसी वक्त करें, प्रोवाइडेड यू हैव अ सेफ स्पेस डाउन, जो क्योंकि लोअर सेगमेंट इंटरनल ऑस पे तो एंड हो जाता है, इंटरनल ऑस तक प्लेसेंटा है, बाकी सर्वाइकल लेंथ है। तो अमूमन वो जो सर्वाइकल लेंथ के जो इर्द गिर्द अगर चाहिए यूट्राइन आर्टरी तो उस लेवल से इंटरनल ऑस के लेवल से ही ऊपर अराइज करती हैं, बट स्टिल यू कैन लाइगेट द वेसल्स ऑन बोथ साइड्स। या बाज दफा ऐसे भी होता है कि अगर आप ये भी करने के काबिल नहीं हो तो फिर आप उसको प्लेसेंटा की जगह से ऊपर भी तो कर सकते हो, यूट्राइन आर्टरी तो ऊपर तक जा रही है, तो आप उसको सेफली ए वेस्कुलर स्पेस ब्रॉड लिगामेंट का आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा उसका मायोमीटर में से डालो और उसको दो जगह पे 1 सेंटीमीटर अपार्ट उसको लाइगेट कर दो। तो ये जो है ये हमने फिर बेसिकली देयर एंड देन डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिचुएशन और उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक। बट दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस, क्योंकि आइडियली जो हम यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करते हैं वो तकरीबन इंटरनल ऑस के लेवल पे ही कर रहे होते हैं और उससे थोड़ा सा ऊपर। लेकिन अगर प्लेसेंटा की वजह से वी आर नॉट एबल टू डू इट, तो हम जहां तक प्लेसेंटा की लिमिट है हम उससे ऊपर भी दाएं बाएं उसकी यूट्राइन आर्टरीज को लाइगेट कर सकते हैं। एंड देन कम्स द ओवेरियन आर्टरी, वो भी उसका एक हल है, जो स्टेप वाइज डी वेस्कुलराइजेशन वाली बात हम करते हैं। तो
इसके साथ साथ हम ये दोनों चीजें जो हैं वो इसको कर सकेंगे, और इसमें हम जो पीपीएच है उसकी क्योंकि पीपीएच इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है ड्यू टू मैनी रीजंस, तो इसलिए ये सारी चीजें जो पीपीएच को मैनेज करने वाली हैं और जो लो लाइन प्लेसेंटा से रिलेटेड है वो सारी की सारी हमें पता होना चाहिए। ठीक है मैडम, इस क्वेश्चन में जो हमने अभी डिस्कस किया है इसमें थायराइड फंक्शन का रोल है। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन वी हैव डन, लेकिन एक्रीटा है, एडहेरेंट है मैडम, नहीं निकल रहा पूरा प्लेसेंटा बाहर, फिर व्हाट शुड वी डू मैडम? लीव द प्लेसेंटा इनसाइड। जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं सारा की तरफ दोबारा, क्योंकि ये बीच में हमने छोड़ दिया ये सारा कुछ। बहरहाल एनीवे सारा, यू वर एट द पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट एंड डूइंग सर्जरी इन दिस केस। ठीक है, तो इसमें जो था वो ये सारा इससे सर्जरी से रिलेटेड था। आपने इसका वो जो सारी चीजें बताई कि इसमें हमने इंसिजन ऐसे ऐसे दिया और ये सब कुछ किया, वो ठीक है। अब इसमें सपोज अब इसमें ये होता है कि सवाल आपसे किसी भी डायरेक्शन में पूछे जा सकते हैं कि अब इसने पेशेंट ने ब्लीड बहुत करना शुरू कर दिया, ये पेशेंट आपका पहले नॉर्मली एडहेरेंस आपने रूल आउट कर ली, लेकिन एक्चुअली जब आपने सर्जरी की तो आपको पता चला कि ये नॉर्मली एडहेरेंट है। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज इमरजेंसी क्वेश्चंस कि इसमें कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं इसकी फर्दर मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब पेशेंट का जो है, अब जो बेसिकली बच्चा आपने निकाल लिया, उसके हवाले कर दिया, आपने सेक्शन कंप्लीट कर दिया, यू आर एबल टू सेव द यूट्रस और सारा कुछ ठीक ठाक आपके हो गया। व्हाट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? Madam, post-operative period, I will keep patient admitted in the high dependency unit. I will do the vigilant monitoring. I will I will remain vigilant for the bleeding per vaginum, input-output record. Okay. Or Madam, vitals monitoring. I will. I will give a broad spectrum antibiotics, good analgesia. I will advise the patient for early mobilization. I will keep her hydration improved. Start her injection Clexane, 40 milligrams subcutaneous. Okay, within the 72 hours, I will get her baby blood group done. If positive, then I will also give her NTD profile, NTD injection to the mother. NTD injection इसको कितना दोगे? मैडम 300 माइक्रोग्राम 1500 इंटरनेशनल यूनिट। मैडम अब इसके वही एक और भी मतलब ये कहते हैं कि आप मेजर कर लें, आप एंटीडी टाइट वो करवा लें, क्लिहर टेस्ट करा लें और फिर उसके मुताबिक भी हम दे सकते हैं। लेकिन इस पेशेंट में आपकी क्या assumption है? Do you think Clay-Hor test is necessary in this condition of low-lying placenta with excessive hemorrhage? इसका पीपीएच हुआ बट वाज मैनेज्ड सक्सेसफुली, तो इसमें आपके ख्याल में Clay-Hor टेस्ट करवाना चाहिए? ये वो कंडीशन है जिसमें करवाना चाहिए, बिकॉज द feto maternal hemorrhage can exceed the dose which you give in a traditional injection, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट को कवर कर रहा होता है। फीटो मैटरनल हेमरेज को जो एक लिमिटेड अमाउंट को कवर कर रहा होता है। सो इफ दैट अमाउंट इज इन एक्सेस, और Clay-Hor टेस्ट जो है वो आप आसानी से कर सकते हो। यू हैव जस्ट टू टेक द ब्लड सैंपल टू denutralize the maternal RBCs and then to see the stable RBCs, fetal RBCs, you have to count it under the microscope, a very simple test. और माइक्रोस्कोप में जो आप काउंट करते हो, आपको सेट नंबर ऑफ सेल से पता चल जाएगा कि इसका इतना हेमरेज है। ठीक है, 80 अगर आरबीसीज आप काउंट करते हो, फीटल आरबीसीज, दैट इंडिकेट फॉर ml ऑफ फीटो मैटरनल हेमरेज। तो उससे पता चल जाएगा आपको कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब ये उसको कवर करेगा या नहीं कवर करेगा।
तो एडिशनल डोज फिर उसके हिसाब से आप दोगे, जो कि नॉर्मली भी लेस देन 1% केसेस में एक्सेसिव फीटो मैटरनल हेमरेज हो सकता है, एंड मोर सो इन दीज कंडीशंस where postpartum hemorrhage occurs and where the placenta is low lying and where the patient is already having multiple episodes of vaginal bleeding in the antenatal period. चलें, NTD भी लग गया। और मैडम उसे मैडम 7 डेज के लिए मैडम उसे वो इंजेक्शन क्लेक्सिन थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस दूंगी, और पेशेंट को मैडम थर्ड डे पे वो क्यों दोगे इंजेक्शन क्लेक्सिन 7 दिन के लिए, इसको क्यों दोगे? इसमें वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस के लिए जरूरी होते हैं? पेशेंट ओबीस नहीं है, 24 इसका BMI है, प्रोलॉन्ग सर्जरी 2 घंटे में आपने सर्जरी कंप्लीट कर ली विद ऑल द मैनेजमेंट ऑफ PPH एंड ऑल अदर्स। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स थे, पेशेंट एनीमिक थी, और आपने सिर्फ 2 ब्लड उसको लगाए पेशेंट पहले से हमारे पास और पेशेंट हमारे पास पहले से मतलब हॉस्पिटल एडमिशन भी था, मतलब हमारे पास एंटीनेटल पीरियड में भी मतलब 3 डेज से एडमिट थी। रूटीनली देते हो? प्रीविया था मैडम उसकी पहले रूटीनली देते हो पेशेंट्स को क्लेक्सिन? 3 डेज के लिए देते हैं इसको देते हो मैडम, 3 डेज के लिए हम देते हैं मैडम, 3 डेज के लिए हम देते हैं। जब तक पेशेंट होती है हमारे पास एडमिट होती है, 3 डेज मैडम हम लगा। Okay, less than Clexane, what are the other remedies to be considered? जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस के, वो क्या होते हैं? You can try in this. हम इसे डेड स्टॉकिंग, जी मैडम, अर्ली मोबिलाइजेशन और उसकी हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। यूजुअली दीज वर्क वेल, क्योंकि जो हमारी कंट्री में जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन या DVT या इन चीज़ों के चांसेस कम हैं, इंसिडेंट्स कम है एज कम्पेयर टू दैट इन द वेस्ट। तो पेशेंट चूंकि ओबीस नहीं है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन नहीं हुई, शी ऑलरेडी हैड PPH, तो इसलिए उसमें फिर जो क्लेक्सिन को थोड़ा सा जरा आप सोच समझ के इसमें दोगे अगर जरूरत होगी तो। लेकिन जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वो आपने जरूर देने हैं, हर पेशेंट में जरूर देने हैं। और दूसरी चीज ये कि क्लेक्सिन किनको देना है, दैट इज बेसिकली केस बेस्ड, नॉट एज अ स्टैंडर्ड थिंग। यानी आपने हर मरीज को नहीं देना, आपने सिर्फ उनको देना है जिसमें इंडिकेटेड है, ठीक है। तो वो इंडिकेशन आपकी बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक। चलें जी, अब ये हो गया इसका। मैडम आप वो कह रही थी लोप्रीन का के एंटीनेटल में कंप्लीट इसको कर लें जरा। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म फॉलो अप होगा ना, इसमें ये बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। वंस यू हैव कंप्लीटेड विद द प्रेजेंट सिचुएशन, आपने उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी गुजार दिया, बच्चे का आपने अगरचे कुछ नहीं बताया, जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड भी था और जिसका लाइकर भी कम था, और उसका ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए, वो सारी चीजें, चाहे वो पीडियाट्रिशियन का काम है लेकिन फिर भी आपने उसको बताना है, ठीक है। वो सारी चीजें कवर करनी है। एंड अबव ऑल यू हैव टू मेंशन अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन एंड फॉर हाउ मच टाइम पीरियड एंड बाय व्हाट मेथड। ये भी आपने एक जुमले में बता देना है, शी इज मल्टी ग्रेविडा लेकिन जस्ट पैरा 2 नाउ, ठीक है। और इसकी मतलब इसके जो रिकरेंट लॉसेस हैं उसमें भी इसको स्पेसिंग देना जरूरी है, बिकॉज इफ द नेक्स्ट प्रेगनेंसी अकर विद इन 6 months, naturally the chances of abortion and the bad obstetric history will repeat it again. तो इसके अलावा जो बाकी ये सारी चीजें हैं एंड और दूसरा ये कि इसमें जो क्रॉनिक एनीमिया वाली चीज है जिसमें हमें कोई वजह नहीं मिली बज़ाहिर, अगरचे इसमें जो रिकरेंट APH इसको होता रहा है, वो एक वजह हम कह सकते हैं कि इसमें ब्लीडिंग की वो वजह थी, एंड मल्टी ग्रेविडिटी इज अनदर थिंग, एंड मैल न्यूट्रिशन आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तो उसको हमने करेक्ट करना है, यू हैव टू गिव अ टाइम फॉर ऑल दीज करेक्शंस। तो इसमें कम से कम 3 साल का तो गैप वो जरूर करे, विच इज एन आइडियल गैप, और उस टाइम पीरियड में उसने ये सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। फिर then comes the situation of the next pregnancy. Once she get pregnant in the next pregnancy, then she should come
for the follow-ups, for the antenatal checkup right in the first trimester, so that the things can be sorted out कि उसमें जो early उसकी स्क्रीनिंग और ये सारी चीजें हैं वो हम शुरू से करें, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने उस डिस्कशन को एंड पे पहुंचाना है, ठीक है। अब हम एक दो बस क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको खत्म करते हैं। मैडम ये जो पेशेंट मुझे थे एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछना था। थायराइड फंक्शन टेस्ट मैम कराने चाहिए थे? थायराइड फंक्शन टेस्ट अब इस स्टेज पे तो नहीं, लेकिन अगर ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आती तो शायद किसी हद तक करवा सकते थे, लेकिन इसमें कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाएगा कि इसकी एक प्रेगनेंसी सक्सेसफुल है। अब जो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी है ना, वो बहुत सारी चीजों को क्लिनिकली ही रूल आउट कर लेती है। अगर ये अब थायराइड डिसफंक्शंस का एक सिनेरियो ये भी होता है कि बार दफा हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म फॉलोज ईच अदर, और यूथायराइड पेशेंट उसके बाद होता है। दीज आर द डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट रीजंस व्हेन देयर इज थायराइडाइटिस, कि उसमें एक इनिशियल स्टेज हुई हाइपोथायराइडिज्म की, फिर एक स्टेज होती है 6 महीने बाद हाइपरथायराइडिज्म की, फिर उसके बाद पेशेंट यूथायराइड होता है। तो वो किसी हद तक उसमें शायद ये पॉसिबिलिटी हो कि ये यूथायराइड स्टेट में उसने कंसीव किया, अगर हम कहें कि ये थायराइड प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का होना एपीएलएस को भी, यूट्राइन एनोमलीज को भी, थायराइड डिसऑर्डर्स को भी तकरीबन रूल आउट कर लेता है। तो इस वजह से जो है एक क्वेश्चन और है जी मैडम, अगर सीवियर ओलिगो हो, आइसोलेटेड और पेशेंट नॉन स्कार है, यानी लेस देन 1 का उसका मीन पॉकेट है, तो पेशेंट को हम ट्रायल दे सकते हैं या फिर इज इट मोर सेफ कि हम डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन के लिए लेके जाएं? देखो, इसमें अगर फर्ज किया ये प्लेसेंटा प्रीविया ना होता, तो अगर उसमें कोई ड्रॉपलेट फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइकर कम है, यानी अगर ये फर्ज किया आप इस जैसे इसमें लाइकर कम था 4, लेकिन अगर उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल ठीक है, डॉपलर फ्लो ठीक है, उसकी जो है वो सीटीजी ठीक आती है, फीटल मूवमेंट्स उसको ठीक परसीव हो रही हैं, देन गिव अ ट्रायल, बिकॉज प्रीवियसली मैडम सीवियर अगर लेस देन 1 हो तो भी जी 1 पे अगर हो मैडम, अगर 1 हो उसका डीप पॉकेट, प्रीवियस 1 के साथ कोई भी और कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाए, क्योंकि देखो इसमें वही बात है ना कि इसमें प्रीवियस 1 को अगर ये पेशेंट प्रीवियस 1 होता और सिर्फ इसमें ओलिगोहेड्रामनियोज होता, नहीं मैडम मैं प्रीवियस 1 नहीं कह रही, मीन पॉकेट अगर लेस देन 1 हो, सीवियर ओलिगो हो, ऑलमोस्ट नील लाइक है, उसमें मैडम तो उसमें तो नहीं करते ना, उसमें तो जाहिर है फिर हाई चांसेस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। तो उसमें मैम आपने इसमें बताया था कि जो आपने दी है एंटी-डी दी है, फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं 28 और 34 वीक्स पे प्रोफाइल एक्सेस देते हैं, तो मैम अगर पेशेंट की 36 पे डिलीवरी हो जाती है, तो क्या वो एंटी-डी उसको कवर करेगा या फिर मतलब कवर कर लेगा? देखो, तो मैम फिर अनलेस के एक्सेसिव हेमरेज ना हुआ हो, फीटोमेटर्नल हेमरेज, या आपने मैनुअली प्लेसेंटा को रिमूव ना किया हो, तो उस सूरत में वो कवर कर लेगा। मैम फिर हमें एडिशनल जो हम रोगैम देते हैं पोस्ट डिलीवरी 72 आवर्स में, वो देना होता है मैम? नहीं, वो वही तो मैं बता रही हूँ ना कि ये एक दफा का एंटीडी दिया हुआ 6 हफ्ते के लिए काफी होता है। तो मैम मैंने तो जो गाइडलाइंस में मैम जो गाइडलाइंस कहती हैं कि जो प्रोफाइल एक्सेस देते हैं हम लोग 24 और 28 और 34 वीक पे, अगर उसके अगले दिन ही बेशक कोई भी ब्लीडिंग एपिसोड हो जाती है तो हमें एडिशनल देना चाहिए, मतलब प्रोफाइल एक्सेस का ब्लीडिंग एपिसोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं, लेकिन देखो वो प्रोटेक्शन तो कवर कर रहा है ना। अब बात ये होती है कि जो एंटीडी आपने दिया वो वही जो प्ले हॉर वाले टेस्ट की बात है कि जो एक एंटीडी होता है वो कितने फीटोमेटर्नल हेमरेज को कवर कर रहा होता है, पहले मुझे ये बताओ। मैम एक एंटीडी मतलब हम लोग 500 लेते हैं ना, तो वो 4 ml को कवर कर रहा होता है, जो हम एक्सपेक्टेड हमारे पास नॉर्मल डिलीवरीज में होता है। लेकिन अगर मतलब ज्यादा हो 1500 का हम इंजेक्शन देते हैं तो वो मैम 25 ml को कवर कर रहा होता है। तो even at the time of birth, more than 4 ml feto-maternal hemorrhage occur in less than 1% of cases. ओके मैम, मींस के जो प्रोफिलैक्सिस है वो भी कवर कर जाएगा, ठीक है मैम? वो उसको भी कवर कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इस पेशेंट की डायग्नोसिस फिर क्या है?
किसकी? इसमें कोई देखो, मैम इसमें इसकी कोई मोर डेफिनेट कॉज प्रोबेबली नहीं है, इसमें कोई डेफिनेट कॉज हम इसको नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि एपीएलएस था, और अगर डेफिनेट कॉज ना मिले तो थोड़ा सा उसकी डिस्कशन मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर एक ही पैटर्न हो सारा, जैसे इसमें अगर एक नॉर्मल डिलीवरी ना हुई होती, टर्म की प्रेगनेंसी ना होती, तो डेफिनेटली इसमें आप सारी चीजें डाल सकते थे, एपीएलएस भी डाल सकते थे, इसमें यूट्राइन एनोमलीज भी डाल सकते थे, थायराइड डिसऑर्डर्स भी डाल सकते थे, बहुत सारी चीजें, प्लेसेंटल डिस्फंक्शंस भी डाल सकते थे। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं, बट वेयर देयर इज नॉट अ डेफिनेट पैटर्न फिटिंग इनटू वन क्लिनिकल सिचुएशन, वहां पे फिर आपको सारी पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है, एक्सेप्ट उन पॉसिबिलिटीज के जिसका डेफिनेटली एक पैटर्न होता है, जो बीच में ऐसा नहीं होता कि कभी नॉर्मल हो जाए कभी एबनॉर्मल हो जाए। मैम फिर फिर इसमें इनका आप कोई वर्कअप पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करवाएंगे? करते हैं। मैम अभी इसका इस डिलीवरी के बाद वर्कअप करवाना चाहिए इंटर प्रेगनेंसी, या फिर प्री प्रेगनेंसी कोई इस डिलीवरी के बाद हमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए कोई वर्कअप करवाना चाहिए, या फिर प्री प्रेगनेंसी हमें कोई इसकी जो है वो हम इसकी कॉस्ट क्या जस्टिफाई देखो, इसमें जो इन्होंने मेंशन की सारी, उनमें से सिर्फ डायबिटीज है जिसका वर्कअप जरूर होना चाहिए। अब देखो, ये भी प्रेगनेंसी इसकी अनइवेंटफुल गई है, सवाए इसके कि इसमें अब ये जो लोप्रिन क्लेक्सिन है, इसकी वजह मुझे नहीं समझ आई कि शुरू कराने वाले ने क्यों कराई। हालांकि इसमें कोई इंडिकेशन ऐसी डायरेक्ट नहीं थी, लेकिन इसमें आईयूजीआर फिर भी हो गया। उसमें हो सकता है उस वक्त किसी अल्ट्रासाउंड पे कुछ ऐसी रीजन मिली हो, तो इस वजह से जो है वो इसमें उस वक्त शुरू कराया हो, क्योंकि जो वजह हमें मरीज ने नहीं बताई गया, जब हमें इन्वेस्टिगेशंस पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसकी फर्स्ट डिलीवरी वाज, जो इसकी फर्स्ट फुल टर्म डिलीवरी थी, दैट वाज ओके विदाउट रिसीविंग एनी एंटीकोएगुलेंट्स, तो उसमें कुछ मसला नहीं था। अब इसमें इस प्रेगनेंसी में इसको हाइपरटेंशन नहीं है, सिर्फ इसको हमने एंटीकोएगुलेंट पे डाला हुआ क्लेक्सन, ऑफेनॉन एंड डोप्रोन कंटिन्यूअसली, उसके बावजूद इसका लाइकर इंडेक्स कम है और ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस है। वो क्यों है, दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क। और उसके साथ क्योंकि लोप्रिन इज स्टिल नॉट एबल टू कोप विद दैट, और ये जो है ये फिर इसमें किसी पर्टिकुलर पिक्चर पे फिट नहीं होगा, क्योंकि अगर एपीएलएस हो तो फिर प्रॉम कहाँ गया, फिर प्रीटर्म, चलो प्रीटर्म तो बर्थ हो सकती है उसमें, एपीएलएस में भी आईयूजीआर भी हो सकता है, लेकिन जो पिछली अगर एक टर्म डिलीवरी वो हम निकाल दें तो फिर बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, जिसपे हम कह सकते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उसका फिर वर्कअप हमने करवाना होता है आफ्टर द बर्थ, कम से कम बर्थ के 6 हफ्ते बाद। फिर उसमें एपीएलएस की भी सारी आप स्क्रीनिंग कराओ, डायबिटीज की भी करवाओ, थायराइड डिसऑर्डर्स की भी करवाओ, फिर सारी स्क्रीनिंग इसमें करनी पड़ेगी। मैडम इसमें एपीएलएस तो मैम बनता है ना, क्योंकि इसमें हम गाइडलाइंस तो कहती हैं कि सस्पेक्टेड हो या डायग्नोज्ड हो एपीएलएस, तो आप उसकी पेशेंट की मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें। मैम जो मैम इसमें क्राइटेरिया लाइक हमारा एपीएलएस का क्राइटेरिया तो ये होता है कि 3 रिकरेंट मिसकैरेजेस हो जो लेस देन 10 वीक्स पे या मोर देन 10 वीक्स पे एक मिसकैरेज हो। ये देखो, ये रिकरेंट मिसकैरेज नहीं है, 2 मिसकैरेज हुई उसके बाद एक फुल टर्म डिलीवरी हुई जिसमें कोई ट्रीटमेंट भी नहीं। लेकिन इसकी एक जो मैम उसका एक ये है, दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि मोर देन 10 वीक्स पे अगर फीटल कार्डिक एक्टिविटी आ जाए और कोई एनोमलीज ना मिले, और तीसरा क्राइटेरिया अगर प्री टर्म बर्थ हो जाए लेस देन 34 वीक्स पे, वो तो इसका प्रॉम हुआ और प्री टर्म बर्थ होगी, प्रॉम हुआ और प्री टर्म बर्थ हो गई। तो मैम लेकिन मैम इसका 10 वीक से बाद भी तो जो जितने बच्चे हैं मतलब 10 वीक्स के बाद भी तो डिलीवरीज हुई है ना मैम, मोस्ट प्रोबेबली तो इसमें कोई यूट्राइन एनोमलीज भी हो सकती हैं, लेकिन हम सस्पेक्ट तो कर रहे हैं ना, तो फिर हमें क्लेक्सिन और लोप्रिन तो स्टार्ट नहीं करा देना चाहिए था। नहीं, देखो मैं वही तो बार बार कह रही हूँ ना कि जो बीच की एक डिलीवरी है वो इसमें फिट नहीं बैठती, उसमें उसको कोई लोप्रिन नहीं मिली, एपीएलएस की मौजूदगी में वो कैसे टर्म तक चली गई, वो डिलीवरी वो कैसे प्रेगनेंसी टर्म तक चली गई। अगर ये एपीएलएस होता है तो क्या एपीएलएस ऐसा होता है कि वो आए और कभी हो जाए और कभी ना हो? नो मैम, वो तो मैम आपको सिर्फ अगर सिर्फ वो एक फुल टर्म की डिलीवरी ना होती जो तीसरे नंबर की थी, तो फिर आपकी जिंदगी आसान है इस केस में, ठीक है मैम। अगर फुल टर्म डिलीवरी ना होती तो हम इसको एपीएलएस लेकर चल सकते थे, लोप्रिन और क्लेक्सिन, बिल्कुल लेके चल सकते थे।
और मैम फिर और उसको स्टार्ट जो कराना होता है वो स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से टिल 34 वीक्स तक होता है। क्या चीज? कम से कम मैम जो 36 APLS और जो कंफर्म्ड APLS है उसमें टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके। और मैम लाइक ये कि हम लोग जैसे पेशेंट की कंसेप्शन कंफर्म होती है हम उसको अब हम इसको जरा वाइंड अप करें प्लीज। मैडम मैम हम सर्जरी का एक इसमें क्वेश्चन पूछना एपिडेमियोलॉजिकल था। कॉज डाल सकते हैं कि क्या? नंबर ऑफ प्रीवियस मिसकैरेजेस पे डिपेंड करता है। 1 मिसकैरेज के बाद अब 15% हो जाता है, 2 मिसकैरेजेस के बाद 25% हो जाते हैं। हाँ, वो ज़ाहिर चांसेस तो बढ़ जाते हैं ना, 1 मिसकैरेज के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद डेफिनेटली बढ़ जाता है नंबर, वो मैम रिकरेंस फिर ये चांसेस तो बढ़ जाते हैं। स्पोरेडिक क्रोमोसोमल वाला ही फाइनली हम इसका कहेंगे। हाँ, वो फिर क्रोमोसोमल वाले पैटर्न में आएगा, APLS में आएगा, ये सारी चीजें। लेकिन रिकरेंट में अमूमन जो क्रोमोसोमल जो हैं, जिनमें ज्यादातर बैलेंस ट्रांसलोकेशन आती हैं, उनका चांस थोड़ा सा, जितना नंबर ऑफ एबॉर्शन बढ़ता जाएगा उतना ही उसके चांसेस कम होते जाएंगे। देन वी हैव टू लुक फॉर द अदर कॉजेस लाइक सम एंडोक्राइन डिस्फंक्शंस, या फिर जैसे APLS है, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीजेस है। ठीक है, तो इसके साथ हम आज का ये एंड करते हैं सेशन। ठीक है मैडम एक क्वेश्चन पूछना था सर्जरी के रिलेटेड। मैडम सर्जरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था, जिस तरह यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन हम कर देते हैं बट स्टिल द प्लेसेंटा एडहेरेंट है, प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम है, मैडम फिर हम क्या करेंगे उस केस में? विल वी लीव द प्लेसेंटा? अगर हमने उसको यूट्रस को सेव करना है तो हम उसको छोड़ देंगे वहीं पे, अगर वो ब्लीड ज्यादा नहीं कर रहा तो। ठीक है, तो वो भी मैडम उसको फॉलो कैसे करेंगे? फॉलो उसको अल्ट्रासाउंड के साथ करोगे, बीटा HCG के साथ करोगे, ग्रेजुअली वो रिजॉल्व हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा शेड करता है, उसमें इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, और अमूमन ये 4 to 6 वीक्स टाइम पीरियड में ये पूरे का पूरा प्लेसेंटा थोड़ा थोड़ा करके शेड ऑफ हो जाता है। मैडम लेकिन इनक्रीटा में तो हम सेव नहीं ना कर सकते यूट्रस को। इनक्रीटा की तो मैंने सारी कहानी आपको बता दी है ना, कि इनक्रीटा में तो वो जिस टिश्यू में घुस गया वो टिश्यू तो तकरीबन खत्म हो जाता है, तो इस वजह से उसको सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है मैडम, थैंक यू। खत्म करते हैं। ठीक है, ओके।